Hello everyone, welcome you all on Anthropology Inside classes. And the lecture of today is Neolithic culture. Okay, now I am going to start. Neolithic culture. Okay, good morning. Good morning, Abu. Neolithic culture. Neolithic culture is also known as New Stone Age. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लूबो क्लासिफाइड द होल लिथिक एज इनटू पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक. तो पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज एंड दैट्स व्हाई दिस नियोलिथिक इज न्यू स्टोन एज मीन्स न्यू काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टेड मीन्स दे न्यू काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखने लग गए पैलियोलिथिक के एंड होने के बाद. तो उन्होंने इसको नियोलिथिक कल्चर कहा. और न्यू स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नए कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाई दिए. मीन्स बीच में उन्होंने मीसोलिथिक स्टेज नहीं जोड़ी थी जिसको हॉर्डर वेस्ट्रॉप ने मीसोलिथिक कल्चर जोड़ा. लेकिन अकॉर्डिंग टू लूबक इट इज नियोलिथिक कल्चर बिकॉज न्यू काइंड ऑफ ट्रेड्स आर फाउंड ड्यूरिंग दिस कल्चर which are very different from the Paleolithic culture. So it is a cultural stage where man takes to production economy. Why it is Neolithic culture? Because here the new traits are production economy means hunting gathering economy. जो food gathering economy थी, hunting economy थी, that was changed into food producing economy. So here the man started producing means plants means cultivate करना शुरू किया. He started cultivating crops during this Neolithic culture with new kind of tools, and to wait for harvest, it led to sedentism. Means sedentary lifestyle started during the Neolithic culture because he started cultivating crops, grains, and for means उसे wait करना पड़ता था for harvest, and that why it led to the sedentary lifestyle, and he has to live permanently in a place in order to store the crop after harvest and to feed his population. So thus with full-fledged agriculture, peasant economy, peasant community emerged. Peasant means the farmers community emerged. Neolithic culture is marked by a new cultural taste, ground stone tools, जिनको कि celts कहा जाता है. Here the ground stone tools are known as celts, which includes axes, edges, hoes, spades, etc. Then potsherds are found here and permanent dwelling structures. So with beginning of the plant and animal domestication, new kind of characteristics started showing during the Neolithic culture, and these are ground stone tools which are used for agricultural purposes. Then potsherds were first made during the Neolithic culture, and permanent dwelling structures means found during the Neolithic culture in order to fulfill their needs and to settle in a particular place permanently. So either individually or together indicate the Neolithic. So these three characters either individually or टुगेदर मीन्स ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक साथ कहीं पे मिल सकते हैं किन्हीं किन्हीं साइट्स पर, और हो सकता है कहीं पर पॉटरी ना मिले, सिर्फ स्टोन सेल्स और परमानेंट ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं. तो ये सभी इंडिकेट करते हैं, दिस ऑल इंडिकेट about the Neolithic culture at that particular place. The new cultural traits, those traits which were found in the Neolithic culture, these are first is beginning of plant and animal domestication. I mean, for the first time, plant and animal domestication started during the Neolithic culture, and the main domesticated plants were barley, wheat, millet, flax. These were used. These were cropped by those people, and while the main domesticated animals were sheep, cattle, goats and pigs. तो cattle, goats, pigs इस तरह के animals जो है domesticate किए गए. जैसा कि पहले ही बताया था कि मीसोलिथिक कल्चर में जो पहला animal domesticate किया गया था that was dog.
बट हियर ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, स्मॉल एनिमल्स को, ड्यूरिंग द नियोलिथिक कल्चर, एंड सम ऑफ देम आल्सो हेल्प इन दियर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. Then next is the appearance of ground and polished stone tools like axes and edges. तो ग्राउंड स्टोन पॉलिश स्टोन टूल्स यहाँ पर जो है मिलने लगे. तो जो पहले एक्सेस बनाते थे वो ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक कल्चर और मीसोलिथिक, these axes were used by polishing and grinding technique. Now they were polished or grounded, and that's why these are ground polished stone tools. इनको cells कहा गया. These are known as cells. So ground axes and edges, these were used in agricultural purposes for clearing the land, for मतलब land को वो prepare करते, for preparing the land for agriculture and for cutting the harvest. ये ऐसा इसलिए वो इन तरह के tools को वो use करते थे. और इसमें से कुछ फिर लेटर वो प्लाव का इन्वेंशन हुआ, जिसको कि एग्रीकल्चर पर्पसेस, हल जिसको कहते हैं, उसका इन्वेंशन हुआ. तो इस तरह नियोलिथिक कल्चर में नए काइंड ऑफ टूल्स, मींस ये टूल्स पहले भी थे, स्टोन पर बनाए गए थे, बट हियर दे आर ग्राउंड एंड पॉलिश्ड. एंड ग्राइंडिंग पॉलिशिंग टेक्निक हमने बताई थी लास्ट क्लास में कि पहले जो टूल्स ऑलरेडी हम स्टोन हैमर या सिलेंडर हैमर टूल से एक्सेस बनाते थे, उन्हीं को यहाँ पर जो है ग्राउंड किया गया, मींस रब किया गया सरफेस पर. पहले तो इनके अनडिजायर्ड जो कॉर्नर्स थे उनको पेकिंग टेक्निक से उसको हमने हटाया, मींस द अनडिजायर्ड कॉर्नर्स वेयर नॉक्ड ऑफ by pecking technique, and then they were grinded on a rub surface, rub slab में, stone slab पर वो grind किए गए, जिससे कि थोड़ा सा वो smoothness आ गई and sharpness, and then they were means rubbed with a or some kind of oil or means fat material of plants or animals, and then these are known as polished. So ground and polished stone tools were made during the Neolithic culture. Then sedentary lifestyle, already said that क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए या क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए उन्हें एक जगह रुकना पड़ता था, और रुकने की वजह से sedentary lifestyle शुरू हुई. And that this sedentary life resulted in permanent houses were constructed. उन places पर आपको permanent houses मिलेंगे जहाँ पर नियोलिथिक कल्चर मिला है. और क्योंकि नई लाइफ स्टाइल जो है ये रिक्वायर करती थी, दैट इज द नीड ऑफ दैट टाइम to live at a particular place, and that's why they started making permanent houses. Permanent settlements were found during the Neolithic culture. During Mesolithic also found some semi-permanent or permanent settlements. Levant जो Natufian culture है वहां पर भी आपको permanent settlements मिलते हैं या semi permanent मिलते हैं, because they migrate for some time. वो कहीं कहीं migrate भी करते थे कुछ needs के according. और फिर quants, rubbing stones and mortars and pestles, these were made during the Neolithic culture for preparing cereals. तो cereals जब प्रोडक्शन हो गया तो उन्होंने इसको हार्वेस्ट किया, और हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर करने के पहले वो उसको क्रॉप को प्रिपेयर करते थे इनकी वजह से, मींस कुछ को पीसना है या रब करना है, तो इसके लिए रबिंग स्टोन्स, मोर्टर, स्पेशल्स, जैसे कि हम ये सेल होती है, खलबट्टे होते हैं, जैसा कि पीसने के लिए डिफरेंट ग्रेन्स को. तो अर्ली पीपुल ऐसे ही इस तरह चीजों को उन्होंने नई नई टूल्स और नए नए आर्टिफैक्ट्स को उन्होंने डेवलप किया. Then they made textiles on looms. It replaced the animal skin for clothing. तो early during the Mesolithic culture they use animal skins, means वो अपने बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल स्किन्स को यूज करते थे. But here they made textiles. And then pottery was invented during the Neolithic culture to store grains, food and water. So because large scale production हो गया during the Neolithic culture, they started growing crops at large scale, and there means there is a need for now there is a need to store the grains, और स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को दे स्टार्टेड मेकिंग पॉटरी. तो पॉटरी का इन्वेंशन इसीलिए हुआ क्योंकि लार्ज स्केल इन्वेंशन उसका एनिमल वो प्लांट डोमेस्टिकेशन की वजह से उन्हें स्टोर करना पड़ा, और स्टोर करने के लिए उन्हें कुछ चीजों की आवश्यकता थी जहां पर वो स्टोर कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने पॉटरी का इन्वेंशन किया.
So due to these revolutionary changes during the Neolithic culture, V. Gordon Child called Neolithic culture as Neolithic revolution in his book Man Makes Himself in 1936. So because of these new characteristics, इन नए कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जिसमें कि बिगनिंग ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन है, appearance of groundstone tools, sedentary lifestyle, permanent houses, querns, rubbing stones, mortars, textiles, and pottery. These kind of characteristics started showing during the Neolithic culture. That's why we got a child called a Neolithic culture as a Neolithic revolution in his book Man Makes Himself. तो Man Makes Himself में 1936 में उन्होंने इसको जो है बोला Neolithic revolution. Beginning of plant and animal domestication. Earlier, it was believed that first farming, that is animal domestication and agriculture, it was started in Near East and Middle East. तो पहले माना गया कि जो फर्स्ट फार्मिंग जो है स्टार्ट हुई होगी वो मिडिल ईस्ट या नियर ईस्ट में स्टार्ट हुई होगी, जो कि साउथ वेस्ट एशिया कह सकते हैं आप. तो वहां पर सबसे पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई और प्लांट और एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत यहाँ पर हुई, मीन्स नियर ईस्ट या मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया. From where it spreads both eastward and westward. मीन्स रेस्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में माना जाता है कि यहीं से जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सबसे पहले यहाँ शुरू हुई और यहाँ से वो दूसरी तरफ स्प्रेड हुई, डिफ्यूज हुई. तो बट इन रिसेंट ईयर इट वाज फाउंड दैट एट डजन प्लेसेस एविडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट अर्ली फार्मिंग आर फाउंड. लेकिन बाद में पाया गया रिसेंट डिस्कवरीज में कि नहीं, कुछ और जगहों पे भी एग्रीकल्चर का इन्वेंशन, इंडिपेंडेंट इन्वेंशन हो चुका था, जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया आता है, जिसमें कि आपके ये वियतनाम और इंडोनेशिया और तमाम और कंट्रीज में भी वहां पर मींस क्रॉप प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था. और नियर ईस्ट में साउथ वेस्ट एशिया में, जिसमें कि लिवांट जो कि मीजोलिथिक कल्चर में ही हम देख लेते हैं कि वहां पर वो कुछ वाइल्ड वेराइटीज को ही ऐसे क्रॉप यूज करने लग गए थे और वो एनिमल डोमेस्टिकेट करने लग गए थे. वही आगे चलकर नियोलिथिक कल्चर में वो इवॉल्व हो जाता है, लिवांट का जो कल्चर था मीजोलिथिक. But in other places also we found the invention of independent invention of the early farming, and these are the South East Asia, Mexico, and some regions of America, and also in South Asia, India. In early phase, during the 5500 BC, in Mesopotamia plains and Zagros mountains, humans started dry farming along with goat and sheep domestication. तो 5500 years ago, मेसोपोटामिया प्लेन्स और जाग्रोस माउंटेन्स, जो कि वो उस पूरे फर्टाइल क्रेसेंट में जो मेन माउंटेन एरिया जहां पर ये पूरा पाया गया, मीन्स न्यूलिथिक कल्चर के जो एविडेंसेस मिलते हैं हमको इसी जाग्रोस माउंटेन्स एरिया में मिलते हैं. और मेसोपोटामिया में तो ये ब्रॉन्ज एज के लगभग वहां पर एग्रीकल्चर की शुरुआत मिलती है. जबकि नियर ईस्ट या मिडिल ईस्ट के जो दूसरे प्लेसेस हैं, जिसमें कि टर्की, जॉर्डन और इजराइल में हमको बहुत पहले ही, मीन्स ड्यूरिंग जो मीजोलिथिक का कल्चर था उस दौरान से ही हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलने लगते हैं. वी गेट द एविडेंस फ्रॉम दैट टाइम अराउंड 10,000 BC. मीन्स 10,000 years ago ही हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं. एंड इन मेसोपोटामिया इट इज अराउंड 5,500 BC. We get the evidences of the goat and sheep domestication and dry farming इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर there is no invention of agriculture, वो means irrigation का यहाँ invention नहीं हुआ है until 5500 BC. वो रेन पर ही वो डिपेंड करते थे. मीन्स रेन अगर होगी तो जो वो सीड्स होंगे डोमेस्टिकेटेड वैरायटी वो ग्रो करेंगे, और रेन नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको ड्राई फार्मिंग कहा गया. और उसके साथ साथ वहां पर एनिमल डोमेस्टिकेशन भी चल रहा था. तो इस तरह दे स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वैरायटीज like wheat, barley, lentils, grass peas and linseed. Besides,
cattle, pigs, dogs, and along with the sheep and goat. So these were the plants and animal varieties which were domesticated during 5500 BC in Mesopotamia plains. It is assumed that the early people during Neolithic who lived at places where large variety of wild grains crop grow slowly increased in the population because of the security of food supply. तो पहले माना गया कि नियोलिथिक कल्चर वहीं पर इवॉल्व हुआ जहां पर सिक्योरिटी मींस फूड सप्लाई ज्यादा होता था वहां पर क्योंकि इंक्रीज पॉपुलेशन एक लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए वाइल्ड वेराइटीज जहां पर ज्यादा थी वहीं पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई होगी और इस तरह के जोन को हम न्यूक्लियस जोन कहते हैं वेयर वी हैव लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड ग्रेन्स एंड क्रॉप्स ओके तो बट बाद में पाया गया कि कुछ नेसेसिटीज की वजह से वो लोग माइग्रेट किए होंगे जो वहां पर न्यूक्लियस जोन में रहते थे so those people who lived in the nucleus zone they started migrating for certain needs to marginal areas और उन marginal areas में वहां पर इस तरह की wild varieties crops की नहीं होती थी तो that's why they started planting the seeds of those wild varieties in these new marginal areas तो जहां पर वो माइग्रेट करके न्यू प्लेसेस पर गए होते थे वहां पर उन्होंने इन वाइल्ड वैरायटीज को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और फिर वहां पर प्लांट कल्टीवेशन की शुरुआत हुई तो ये जो कहना था कि प्लांट कल्टीवेशन वहां स्टार्ट हुआ जहां पर पहले वाइल्ड वैरायटीज थी ये कहना बाद में गलत साबित हुआ क्योंकि ये उन्हीं एरियाज में जहां पर अननोन था मींस बिफोर वहां पर कोई भी वाइल्ड वैरायटी नहीं पाई गई ऐसे एरियाज में सबसे पहले प्लांट डोमेस्टिकेशन की शुरुआत मानी जाती है तो जिसका कि एक एग्जांपल मिलता है कि first evidence of agriculture was found from those areas there were no wild varieties and one site is Tel Muriabad on Euphrates in Syria तो यूफ्रेट्स जो नदी है सीरिया में वहां पर large number of undomesticated variety of charred bones are found and at the pre-ceramic level with the clay walled houses, grinding stones, roasting pits, and this shows that crude ceramic pottery need not be evidence of productive economy. तो प्री सिरेमिक जो स्टेज या प्री पॉटरी कल्चर में भी हमको डोमेस्टिकेशन प्लांट डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं और ऐसे प्लेसेस में मिलते हैं जहां पर पहले कोई भी वाइल्ड वैरायटी नहीं पाई गई थी तो अननोन प्लेसेस में या एकदम से न्यू प्लेसेस में जहां पर वो मार्जिनल एरियाज में माइग्रेट कर गए थे अपने न्यूक्लियस जोन से उन प्लेसेस पर हमें सबसे पहले प्लांट डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट एंड दे डिड बोथ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन टुगेदर बिकॉज व्हेन देयर वर सरप्लस ऑफ फूड जब उनके पास सरप्लस फूड होता था दे एक्सचेंज देयर लाइफ स्टॉक विद अदर पीपुल तो जो जिनके पास फूड नहीं होता तो यहीं से इकोनॉमिक एक्सचेंज की शुरुआत हुई तो जब हमारे पास फूड प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गया तो जिन नेबरिंग कम्युनिटीज के पास फूड कम होता था उनसे हम लाइव स्टॉक ले लेते थे मीन्स एनिमल ले लेते थे और जब हमारे पास एनिमल्स डोमेस्टिकेशन मीन्स अच्छा होता था प्रोडक्टिव होता था तो हम ग्रेन्स दूसरी कम्युनिटी से ले लेते थे तो इस तरह जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज इकोनॉमिक एक्सचेंज की शुरुआत हुई बार्टर एंड रेसिप्रोसिटी स्टार्टेड विद दिस plant and animal domestication. To overcome uncertainty of crop production during dry farming because of rain failure, irrigation was started during the late Neolithic. तो अर्ली नियोलिथिक में इरिगेशन सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है but during the late Neolithic we have the evidences of irrigation और इसीलिए क्योंकि because during the late Neolithic we have the evidences of irrigation means wet farming start हो गई होगी और इसीलिए इस तरह की सोसाइटीज को हम हाइड्रोलिक सोसाइटीज कहते हैं some historians call these cultures as hydraulic societies because of the presence of irrigational मीन्स वहां पर फैसिलिटीज थी इसलिए इनको हम हाइड्रोलिक सोसाइटीज कहते हैं yes Pranjal barter system begins from here because they have enough plants and animals to exchange
Before that, during the Paleolithic and Mesolithic, they were hunting gathering economy, and उनके पास stored food नहीं होता था या large number of animals नहीं होते थे, क्योंकि everyone has to gather the food, means सभी को means food के लिए gather करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह nomadic life थी, तो इसलिए उस समय ऐसा नहीं था। पर बाद में क्योंकि उनके पास अच्छा स्टॉक होता था प्लांट्स का, मीन्स क्रॉप्स का एंड एनिमल्स का, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे, एंड दिस लेड टू इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड लॉज, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोफेशनल क्लॉज। तो क्योंकि धीरे धीरे एग्रीकल्चर और इस पे जो इकोनॉमी बेस्ड हो गई, उससे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि इरिगेशन भी स्टार्ट हो गया, तो उस लैंड लॉज डेवलप हो गई, रेवेन्यू डेवलप हो गया, एंड प्रोफेशनल क्लास भी इमर्ज हो गई। Another evidence of early farming came from non-Nontha and other regions from Thailand, Burma। तो साउथ ईस्ट एशिया से भी जो हमें प्रमाण मिलते हैं, वी हैव द एविडेंस ऑफ साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर, अर्ली एग्रीकल्चर, these are from Thailand, Burma, Indonesia। तो one of the site is non-Nontha and other regions from Thailand and Burma around 6000 BC। तो 6000 BC के लगभग हमको इस तरह के प्रमाण मिलते हैं, and here tropical rainforest led to the floristic variety, but the plant species are different from those found in the नियर ईस्ट और मिडिल ईस्ट। यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो हियर द प्लांट स्पीशीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन द मिडिल ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया। इन साउथ ईस्ट एशिया जो वेराइटीज पाई गई, दीज आर बनाना, टारो, सुगर केन एंड कोकोनट। तो दीज आर द वेराइटीज विच वर फाउंड, जो कि रूट एंड फ्रूट क्रॉप्स मेनली पाए गए, एंड फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी यहाँ पर दिखाई दी, मींस एविडेंसेस हमें जो मिलते हैं इन प्लेसेस से, एंड नॉट मच यूज ऑफ पॉटरी, बिकॉज हियर हमको पॉटरी का ज्यादा नहीं मिलता है प्रमाण। क्लॉथिंग भी जो है बार्क क्लॉथ या मैटिंग पर की गई, तो वो और वुलन टेक्सटाइल्स नहीं मिलते, जैसा कि हमको मेसोपोटामिया में और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और नियर ईस्ट में मिलते हैं। Not much use of pottery and clothing was made on bark, and William Solheim in 1972 said that Neolithic in Southeast Asia started 20,000 years ago। Means William Solheim कहते हैं कि वहां पर तो क्रॉपिंग, मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन तो 20,000 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था। मीन्स अर्लीस्ट क्रॉप प्रोडक्शन के अनुसार वो इन एरियाज में साउथ ईस्ट एशिया में स्टार्ट हुआ, जबकि दूसरे प्रमाण कहते हैं कि अर्लीस्ट इन्वेंशन मींस जो प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन की जो बिगनिंग हुई, दैट वाज इन नियर ईस्ट और मिडिल ईस्ट इन द लिवांट रीजन। तो इस तरह इन मैक्सिको आल्सो वी हैव द एविडेंस ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर अराउंड 5000 BC। तो डिफरेंट जो साइट से हमें बिगनिंग, मतलब प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं, इस इंडिपेंडेंट प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि सबसे पहले नियर ईस्ट या मिडिल ईस्ट में ही इसकी शुरुआत हुई, और वहां से वो स्प्रेड हुआ दूसरे एरियाज में, नियर एरियाज में, जिसमें कि आपके यूरोप में या अदर पार्ट्स ऑफ द एशिया। But other archaeologists said that animal and plant domestication started independently at various places like Southeast Asia and Europe. Ground stone tools means sharp axes and edges were used to cut through trees and as a shoe of plant and plow and hoe. And handmade file pottery was also started making during this Neolithic culture for storing the harvest. Here are some theories of agricultural transition, means कैसे agriculture की शुरुआत हुई, और इसी दौरान मीन्स अराउंड मीन्स जो मीजोलिथिक कल्चर के बाद या मीजोलिथिक कल्चर के दौरान ही, उसी पीरियड के दौरान ही मिडिल ईस्ट में शुरुआत हो गई थी। और विलियम सोलियम का मानना है कि 20,000 ईयर से वो ही शुरुआत हो गई, जो कि हम मान सकते हैं कि इट वाज द पीरियड ऑफ अपर पैलियोलिथिक।
मीन्स अगर हम डेटिंग के हिसाब से चलें तो 35,000 to 10,000 is the period of upper Paleolithic, and 10,000 to 6,000 is the period of middle Paleolithic. And here we get the evidences of agriculture from the Near East and Southeast Asia 20,000 years ago or 10,000 years ago. That was during the period of Mesolithic and Upper Paleolithic. तो ये मीन्स एग्जैक्ट हमको प्रमाण नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ ही साइट्स में हमको इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। सभी जगह इस तरह शुरुआत हो गई होगी ऐसा नहीं कह सकते हैं। कहीं पे बाद में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, कहीं पहले हो गया। तो और क्यों हुआ, मीन्स इन प्लेसेस पर ही एग्रीकल्चर की शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे तमाम रीजंस दिए गए हैं। So here are some theories of agriculture transition, means how agriculture was invented at some places. First is the Oasis theory. It was proposed by Raphael Pampley and later it was popularized by V. Gordon Child in 1928. And he summarized this theory in his book Man Makes Himself. And this theory says that as the climate got drier due to the due to the Atlantic depressions shifting northward, communities contracted to oases, and where they were forced into close association with the animals, and which they were then domesticated together with the planting of seeds. तो ओसिस थ्योरी कहती है कि जो अटलांटिक डिप्रेशन की वजह से क्लाइमेट वहां पर ड्रायर होता गया डिजर्ट एरियाज में, और कुछ जो ऐसे एरियाज जहां पर ओसिस मीन्स जो वेजिटेट एरिया था, मतलब जहां पर वेजिटेशन पाई जाती है, डिजर्ट का वो एरिया जहां पर यू कैन गेट द वेजिटेशन। तो ऐसे एरिया में वो कॉन्ट्रैक्ट होकर मीन्स रहने लग गए, और वहां पर जो भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज रही होगी उसके वो कांटेक्ट में रहे, और बाद में उन्हीं को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया। तो इस तरह एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई अकॉर्डिंग टू ओसिस थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय राफेल पम्पले। देन हीली फ्लैंक्स हाइपोथेसिस, इट सेज दैट इट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्रेडवुड एंड इट सजेस्ट दैट एग्रीकल्चर बिगेन इन द हिली फ्लैंक्स ऑफ द तारोस एंड जाग्रोस माउंटेन्स। जैसा कि हम नियर ईस्ट में सभी ज्यादा मोस्ट ऑफ द साइट्स ये जाग्रोस माउंटेन्स की ही हैं, और जो रीजन पूरा लिवांट और ये साउथ एशिया नियर ईस्ट का जो फर्टाइल क्रेसेंट एरिया है दैट वाज जाग्रोस माउंटेन एरिया। और क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट वाज नॉट मच ड्रायर एंड इट वाज फर्टाइल लैंड, that is why here we get the praman of means agriculture evidences of agriculture and plant animal domestication. तो hilly flank hypothesis ये कहती है। देन फीस्टिंग मॉडल आती है बाय ब्रायन हैडन, जो कहते हैं कि जब उन्होंने मीन्स धीरे धीरे जब उनके पास वाइल्ड वैरायटीज ही रही होंगी, तो क्योंकि उनको अपना पावर शो करना है अमंग द कम्युनिटी मेंबर्स, अदर कम्युनिटी मेंबर्स, तो दे स्टार्टेड गिविंग फीस्ट। और फीस देने के लिए उनके पास एनफ जो है वो प्रोडक्शन होना चाहिए, और क्योंकि ये रिक्वायरमेंट मीन्स ट्रेडिशन बना दिया उन्होंने फीस्टिंग। तो दैट इज वाई टू सपोर्ट दिस फीस्टिंग मॉडल मीन्स फीस्टिंग को सपोर्ट करने के लिए दे स्टार्टेड क्रॉप कल्टीवेशन। तो क्रॉप कल्टीवेशन उन्होंने फीस्ट को करने के लिए ही स्टार्ट किया, ये कहता है फीस्टिंग मॉडल। देन डेमोग्राफिक थ्योरीज कहती हैं कि जो है यहाँ पर मीन्स सीडेंट्री पॉपुलेशन स्टार्ट हो गई, और क्योंकि वो उसको मीन्स वो नंबर ऑफ मीन्स नंबर में इंक्रीज कर गए। मीन्स डेमोग्राफिक थ्योरी ये कहती है कि जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ या इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, तो जो लोकल एनवायरनमेंट था वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा फूड की जरूरत पड़ने लग गई, और इस तरह क्योंकि ज्यादा फूड को जरूरत पड़ गई एंड टू फुलफिल लार्ज पॉपुलेशन, that is why they started crop cultivation and animal domestication. Then evolutionary theory intentionally theory कहती है कि क्योंकि इवॉल्व हुआ मीन्स जैसे सभी चीजों में इवोल्यूशन हुआ, उसी तरह वाइल्ड वैरायटी से डोमेस्टिकेटेड वैरायटी में इवोल्यूशन हुआ। एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड रेंडोस एंड अदर्स। It views that agriculture as an evolutionary adaptation of plant and humans. Then stable climate at the beginning of Holocene, ये पीटर रिचर्डसन एंड रॉबर्ट बेटिंगर ने कहा कि एग्रीकल्चर तब शुरू हुआ जब होलोसीन में मीन्स प्लेस्टोसीन एंड होते ही होलोसीन आया ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एंड लेट मीन्स अर्ली न्यूलिथिक पूरा ये जो अभी तक होलोसीन चल रहा है। तो इसमें क्लाइमेट क्योंकि स्टेबल हो गया,
इस वजह से क्योंकि एनवायरनमेंट जो है सुटेबल मिला और इसलिए उन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन किया, ऐसा मानना था इस हाइपोथेसिस के अनुसार। देन नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज दैट Neolithic revolution originated over long periods of development in the Levant, और वहीं पे मीन्स जो एपिपैलेथिक या मीसोलिथिक कल्चर में लिवांट जो रीजन है जो कि साउथ वेस्ट एशिया का, वहां पर लंबे समय तक इस तरह की प्रोसेस चल रही थी। मीन्स दे स्टार्टेड एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द वाइल्ड वेराइटीज ऑफ सम क्रॉप्स। तो इस तरह वहां पर न्यूलिथिक रिवोल्यूशन हुआ इस वजह से, क्योंकि शुरुआत एपिपैलेथिक पीरियड से ही हो गई थी। तो दीज आर सर्टेन थ्योरीज ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांजिशन और rise of agriculture during the Neolithic period. देन फर्स्ट जो जैसा कि पहले ही बताया कि फर्स्ट जो प्रमाण मिलते हैं एविडेंसेस ऑफ नियोलिथिक दैट वाज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, ये नियर ईस्ट भी कहा जा सकता है दिस एरिया एंड आल्सो साउथ वेस्ट एशिया। तो जो पहला साइट है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड दैट इज जेरिको। जेरिको ये वहीं पर है जहां पर नटूफियन कल्चर आपने पढ़ा था लिवांट में, वहीं पर जेरिको है। इट इज अ फिलिस्तीनियन सिटी इन द वेस्ट बैंक located in the Jordan Valley, and more than 20 Neolithic settlements were unearthed by the archaeologists here. And first excavation was made by Charles Warren in 1868, and जो टेलस सुल्तान एंड टुलुल Abu al-Alaki were excavated by between 907 and 919 in 1911 by Ernst Selen and Karl Watzinger। तो इस तरह की दो साइट्स भी वहीं से जेरिको से एक्सकेवेट की गई। मीन्स पहला एक्सकेवेशन तो चार्ल्स वैरन ने किया 1868, लेटर एक्सकेवेशंस वर मेड बाय Ernst Selen and Watzinger at these two sites. Other excavations were made later by some other archaeologists. Distribution is Jordan, Israel. जो ये पहले जॉर्डन में था and later it was included in Philistine, Israel. Sites are Anes Sultan or Ane Sultan and Tel Sultan or Sultan's Hill. These are the sites. Ane Sultan जहाँ पर आपको लिवांट कल्चर मिलता है, and Tel Sultan is also found there in Jericho. Then time period is 11,000 or 9,500 to 6,500 years ago. तो जेरिको में जो भी हमको नियोलिथिक सेटलमेंट्स के प्रमाण मिलते हैं, इट वाज 11,000 और 9,500 टू 6,000 में ही ये फिर वहां पर नियोलिथिक कल्चर खत्म हो जाता है एंड स्टार्टेड ब्रॉन्ज कल्चर और चालकोलिथिक कल्चर स्टार्टेड। तो 6,500 के बाद यहाँ पर चालकोलिथिक कल्चर स्टार्ट हो जाता है एंड द कल्चर विच वाज फाउंड हियर इज प्री पॉटरी टाइप। प्री पॉटरी नियोलिथिक यहाँ पर मिलता है। मीन्स देयर इज नो एविडेंस ऑफ पॉटरी फ्रॉम दिस प्लेस जेरिको। जेरिको में पॉटरी नहीं मिलता, पर यहाँ पर आपको सेटलमेंट्स मिलेंगे, हर्ट्स मिलते हैं। मीन्स वो कुछ कुक करते थे, कुकिंग हर्ट्स मिलते हैं, मीन्स कुकिंग एरिया मिलता है, और सेटलमेंट्स मिलते हैं। और टेराफिम एक टाइप ऑफ आर्ट उन्होंने डेवलप किया था ऑन द स्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग। मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग they started means burying the whole body except skull। स्कल को वो रख लेते थे अलग और पूरी बॉडी को वो बरी कर देते थे अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो इन सेटलमेंट्स में आपको फ्लोर के नीचे जहां पर वो रहते थे उन्हीं के नीचे वो बरी करते थे अपने लोगों की डेड बॉडीज को। लेकिन स्कल को वो हो सकता है कुछ रिलीजियस पर्पसेस के लिए या कुछ मैजिकल पर्पस के लिए वो रख लेते थे, या एंसेस्टर डिटीज के रूप में मानते रहे होंगे, अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस बिलीफ। एंसेस्टर जो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो बिलीफ इन सोल एंड उसके बाद जो एनिमिज्म है, उसके बाद हम एंसेस्टर डिटीज को उनकी बिलीफ स्टार्ट हुई, धीरे धीरे जो रिलीजन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर वो स्कल को रख लेते थे और उसे मड से प्लास्टर करते थे। हियर दिस काइंड ऑफ आर्ट इज नोन एज टेराफिम एंड ये मड प्लास्टर्ड स्कल्स यहाँ पर पाए गए
एक्सकेवेशंस में, और पूरी बॉडी जो थी वो बरी की हुई पाई, मीन्स बरियल में आपको सिर्फ बॉडी मिलती थी, स्कल नहीं मिलता था। एंड स्कल्स वेयर मड प्लास्टर्स, जो कि रूम पे पाए जाते थे, जहां पर वो रहते थे वहां पर मड प्लास्टर्ड स्कल्स रखे होते थे। उसकी वो शायद वर्शिप करते रहे होंगे, या मैजिक और रिलीजियस पर्पस के वजह से वो रखते रहे होंगे। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, पर अनुमान लगाया जाता है कि शायद यही वजह रही होगी जो वो मड प्लास्टर्ड रखते थे। और इसमें कुछ उन्होंने यहाँ पर आंखों में उन्होंने यहाँ पर कुछ शेल्स लगाई, सी शेल्स उन्होंने लगा दी हैं, और इस तरह वो उसको कलर भी करते थे। ये मीन्स इनको स्कल्स को वो कलर भी करते थे और मड से प्लास्टर करते थे। सी शेल्स उनकी आंखों में कहीं कहीं प्रमाण के रूप में मिलते हैं, लगाए हैं। तो काइंड ऑफ आर्ट उन्होंने डेवलप की, और जिसको कि वो मैजिकल या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते थे। इट वाज अज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। तो प्री पॉटरी नियोलिथिक कल्चर ए एंड प्री पॉटरी नियोलिथिक बी में इसको पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो जो जेरिको में हमको नियोलिथिक के प्रमाण मिलते हैं, दिस इज टाइप ऑफ प्री पॉटरी नियोलिथिक। प्री पॉटरी नियोलिथिक के प्रमाण मिलते हैं, दैट वाज अराउंड 9500 to 6500 BC. And this pre-pottery Neolithic is divided into two types, pre-pottery Neolithic A and B, on the basis of characters, means variation of characters found in these two. तो जो नियोलिथिक ए है उसमें स्मॉल सर्कुलर ड्वेलिंग्स मिलती हैं, तो यहाँ पर स्मॉल सर्कुलर ड्वेलिंग्स मिलती हैं, बरियल ऑफ डेड अंडर द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग्स, एंड वाइल्ड गेम हंटिंग, cultivation of wild or domestic cereals in this wild means pre-pottery Neolithic A. Then pre-pottery Neolithic B में जो फीचर्स हैं, these are large variety of domesticated plants. तो वाइल्ड वैरायटी नहीं है यहाँ पे, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, क्योंकि धीरे धीरे कल्चर इवॉल्व करता है, तो यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीशीज मिल रही हैं। शीप डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं, एंड प्लास्टर्ड ह्यूमन स्किल्स जो कि टेराफिन हमने कहा, दैट वाज फाउंड ड्यूरिंग द प्री पॉटरी नियोलिथिक बी, नॉट ड्यूरिंग द ए। तो टेराफिन जो कि 10 इन नंबर मिले हैं, 10 मिले हैं पूरे टेराफिन जो कि पेंट किए गए हैं, सो एज टू रिकॉन्स्टिट्यूट द इंडिविजुअल फीचर्स। तो आपको देखने में लगेगा कि ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग का कुछ स्कल इस तरह रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसको ऐसा क्रिएट कर दिया है। इट इज assumed that these terrapins were kept in people homes while the bodies were buried. तो बॉडी को तो बरी कर देते थे, लेकिन इनको अपने घरों में रखते थे, and they reconstruct the facial features using the plaster and sometimes eyes set with the shells. तो इस तरह शेल से आइस को उन्होंने किया है, मीन्स सेट किया है। The next site, these are the important sites, means Jericho, Jarmo, Catalhook, and Shanidar. So these are the 4 important sites of the Near East. So Jarmo is the another site. It is also known as Kalat Jarmo. Kalat Jarmo भी कहते हैं इसको। Kalat Jarmo. It's an archaeological site located east of Kirkuk in modern northeastern Iraq. तो ये इराक में है। Jericho was in Jordan, Philistine, and it was in Iraq. On the foothills of Zagros mountain, it lies at an altitude of 800 meter above the sea level in a belt of oak and pistachio woodlands in the Adhaim River watershed. तो इस तरह ये थोड़ा ऊंचाई पर है, और ये समुद्र की सतह से 800 मीटर ऊपर है, और ये जागरोस माउंटेन पर ये साइट जो है अवेलेबल है। Distribution is Iraq and site is Zarmo. Then time period is 7500 to 5000 BC. तो ये जार्मो से यंगर है दिस साइट यहाँ, क्योंकि ये जो एज जो यहाँ पर आपको डेट्स मिलती है इसका टाइम पीरियड की, दैट वाज 7500 to 5000 BC, जबकि वहां पर 11000 या 9500 से ही नियोलिथिक के प्रमाण मिलते हैं, जो कि प्री पॉटरी टाइप नियोलिथिक है। But here we get the pottery from Jarmo. First village farming communities कहते हैं, first village farming communities in the world with the evidence of settled agriculture way of life. Here we get the evidence of domesticated wheat, barley and animals like dog and goat. And wheat, barley और इस तरह के animals के साथ हमको
क्रॉप वेराइटीज मिलती है। देन टूल्स लाइक फ्लिंट, सिकल प्लेट्स एंड मिलिंग स्टोन्स मिलते हैं, मीन्स क्रॉप को मिल करने के, मीन्स पीसने के लिए। देन पॉटरी वेयर फाउंड इन द अपर मोस्ट लेयर्स ओनली, मीन्स लेट नियोलिथिक में आपको जार्मो में पॉटरी मिलती है। अर्ली नियोलिथिक में पॉटरी के प्रमाण नहीं मिलते, बट लेट नियोलिथिक इन एट जार्मो वी गेट द एविडेंस ऑफ पॉटरी। Then 25 houses were found with the mud walls. Here ये जो सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट मिला है, इसमें 20 हाउसेस मिले हैं प्रमाण के रूप में खुदाई में, और जिसमें कि मड वॉल्स थी, मिट्टी से बने हुए वो हाउसेस थे, उनकी वॉल्स भी मड की थी। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी विद क्ले फिगर्स, मदर गॉडेस डीटी। तो यहाँ पर ये कुछ क्ले पॉटरी मिली है जो कि जार्मो से। Jericho was the pre-pottery culture, but here we get the pottery and also some kind of beads which were used to make ornaments. So these were the evidences from Jarmo, and was the first village farming community in the world with a settled agriculture way of life. Then another is Shanidar Cave. Shanidar Cave का नाम आपने जब मिडिल पैलेथिक पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने देखा था कि फ्लोरल बरियल मिला था। इस निएंडरथल मैन के साथ वी गेट द एविडेंस ऑफ सम फ्लावर्स, पॉलन ग्रेन्स वहां पर मिले, और इस तरह माना जाता था कि वो अपने लोगों के प्रति जो उनका इमोशनल अटैचमेंट होता था वो उस तरह की ग्रेवयार्ड से पता चलता था कि कैसे वो मरने के बाद लोगों को मीन्स वर्शिप, मीन्स एंसेस्टर डिटीज और बिलीफ ऑफ आफ्टर लाइफ जो है वहां से प्रमाण मिलते थे। पर जो नियोलिथिक के जो प्रमाण है दैट वाज ड्यूरिंग द मिडिल पैलेथिक, बट नियोलिथिक में 2 लेट प्रोटो नियोलिथिक सिमेट्रीज आर फाउंड। शानीदार केव जो है वो ब्रॉड्स माउंटेन इन अरबल गवर्नेट ऑफ नॉर्दर्न इराक, कुर्दिस्तान में है ये, एंड इट वाज अ केव साइट नियर ओपन विलेज ऑफ रिवर्स एट रिवर्स। तो जो हमको लिवांट वैली है, एरिया है, मिडिल ईस्ट का पूरा जो एरिया है फर्टाइल क्रेसेंट, उसके पास ही ये केव साइट है इराक में, ठीक है। और यहाँ पर यूजुअली माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार कि वो बेस कैंप के रूप में यूज करते रहे होंगे। दिस साइट वाज यूज्ड एज ए बेस कैंप एंड बरियल साइट, क्योंकि यहाँ पर दो लार्ज मीन्स प्रोटोनियोलिथिक सिमेट्रीज या ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, जिसमें कि बहुत सारे मीन्स क्या कहते हैं बरियल्स मिले हैं के मैन के। और जो अर्ली बरियल था शनिदार 4 फ्लावर बरियल था निएंडरथल मैन का, लेकिन जो बाद में लेटर डिस्कवरीज में शनिदार 1, 3 और 5 इसको नोटिफाई किया गया, इस तरह के एडल्ट मेल्स के बरियल मिले हैं। And too late, and the time period is 9000 to 8000 9000 या approx 8000 BC के अकॉर्डिंग, मीन्स लगभग ये शानीदार केव में प्रोटो नियोलिथिक कल्चर की बिगनिंग मानी जाती है, मीन्स बिफोर नियोलिथिक। it is a kind of culture that is regarded as proto neolithic. And 2 late cemeteries were found and 2 clusters of human fossils were discovered at the Shanidar cave between 1953 and 1960. And the most recent findings are those of 3 adult males, Shanidar 1, 3, 5. 35 bodies are found in 26 burials and the associated artifacts recovered from the cave's upper levels. तो केव के अपर लेवल से, लोअर लेवल से नहीं, अपर लेवल से इस तरह के बरियल हमको मिले। मीन्स लेट नियोलिथिक, मीन्स प्रोटो नियोलिथिक है पर यहाँ पर लेटर पीरियड से मिले हैं, ठीक है। और स्पेशल असेंबलेज ऑफ फनरी गुड्स एंड ह्यूमन रिमेन्स विद बरियल गिव्स क्लूज अबाउट फैमिली रिलेशनशिप्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ दीज पीपल। तो जरूरी नहीं है कि मीन्स ये लोग वहीं पे परमानेंटली रहते रहेंगे। हो सकता है कि जो आसपास के फर्टाइल क्रेसेंट के लोग थे वो यहाँ पर आते रहे होंगे अपने कैटल के साथ और वहां पर थोड़ी देर रुकते रहे होंगे, और इस तरह जो क्लूज मिलते हैं वो हमको मिलते हैं कि कैसे उनकी लाइफ स्टाइल थी
और उनके फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे थे, क्योंकि वो जो बरियल किए हैं उसमें तमाम ऐसे गुड्स या आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, इससे लगता है कि उनका कैसा लाइफस्टाइल या इमोशनल अटैचमेंट क्या रहा होगा, फैमिली कैसे रहती रही होगी, इस तरह की कुछ हमको मीन्स एविडेंसेस मिलते हैं एंड सम वी गेट सम क्लू of family relationship and lifestyle of these people. It is the only prehistoric cemetery site of its kind from the east of Mediterranean Sea. तो मेडिटेरेनियन सी के इसमें जो मीन्स इकलौता ये एक ऐसा प्रीहिस्टोरिक सिमेट्री साइट है शानीदर केव, जो कि हमको मिलता है and it adds a new geographical perspective to the study of proto-Neolithic era. Artifacts and skeletal remains provide evidence about the origin of agriculture and trade. तो जो भी वहां पर हमको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं बरियल साइट्स पे, उससे पता लगता है कि वहां पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पर वो केव में हो सकता है परमानेंट ना रहते हो, आसपास के एरिया से वो थोड़ी देर आते रहे होंगे, पर जो गुड्स उन्होंने उस बरियल साइट्स में उन लोगों के साथ मीन्स दफनाया है, उससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर कैसा रहा होगा। मीन्स वहां एग्रीकल्चर की शुरुआत आसपास हो चुकी थी, उसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं और ट्रेड के भी प्रमाण मिलते हैं। वो कुछ एक्सचेंज करते, व्यापार भी करते थे, तो इसका जो है प्रमाण मिलता है। इट ऑफर्स क्लूज टू द रोल ऑफ जाग्रोस एंड टॉरस माउंटेन्स एरिया इन द प्री हिस्ट्री ऑफ द नियर ईस्ट। तो इस तरह हमें जो है शानीदर केव से प्रोटो नियोलिथिक कल्चर के प्रमाण मिलते हैं। Then the next important site is Cattle Hook, and it's one of the largest and best preserved early Neolithic site in the Middle East, located near Konya in south-central Turkey. It was excavated by British archaeologist James Mallard in 1958. James Mallard 1938 में इन्होंने इसको excavate किया, and study shows that Anatolia in Neolithic times was the center of an advanced culture. तो एनाटोलिया जो है वो प्लेस वही टर्की में है और ये एडवांस कल्चर का सेंटर रहा होगा। फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर विद द कल्टीवेशन ऑफ wheat and barley and by breeding of cattle. Wall murals and number of religious figurines, female figurines were scattered throughout the settlement. तो यहाँ पर आपको वॉल पेंटिंग जो आर्ट की में वॉल म्यूरल्स मिलते हैं, वॉल पेंटिंग्स एंड कुछ रिलीजियस फीमेल फिगराइंस के प्रमाण मिलते हैं। माना जाता है कि वो रिलीजियस डीटी के रूप में, फीमेल डीटी के रूप में उनकी पूजा करते रहे होंगे, वर्शिप करते रहे होंगे। एंड कैटल हुक का जो टर्किश नेम होता है, दैट इज टर्किश मीनिंग होती है दैट इज फोर्क माउंट। Distribution is in Turkey, Anatolia, and time period is 7,500 to 5,700 BC. The site is 91 acres in area and nearly 70 feet tall. It was occupied between this period and site between 3,000 and 800 people lived there. तो जब वो मीन्स फ्लोरिस्ट हो गया था, ये कल्चर जब अच्छे से डेवलप हो गया नीलोथिक, तो वहां पर माना जाता है कि 3,000 से 8,000 लोग रहते रहे होंगे, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। Nearly 8,000 year old female figurine deity that was discovered by Ian Hodder and his team. ये शो करता है, it symbolizes the fertility and older women with the achieved status. तो यहाँ पे सीटेड वुमेन के प्रमाण मिलते हैं और ये माना जाता है कि ये एक ओल्ड वीमेन के स्टेचू है मीन्स और ये रिलीजियस फिगर के रूप में यूज किया जाता रहा होगा। तो ऐसे तमाम जो है सीटेड वुमेन के ओल्ड सीटेड वुमेन के हमको एविडेंस मिलते हैं फ्रॉम होल कैटल वर्क। तो इस तरह ये सबसे पहले इयान होडर एंड इस टीम के द्वारा जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, उनके द्वारा सबसे पहले डिस्कवर किया गया ओल्ड फीमेल फिगराइन और डीटी, एंड फिगराइन सीम टू हैव मीडिएटेड बिटवीन द लिविंग एंड डेड। लिविंग एंड डेड के बीच में ये मीडिएट करता है, ऐसा माना जाता है, बिकॉज जैसा कि हम टेराफिम स्कल अभी देखे थे जेरिको में, वैसा ही यहाँ पर भी शो किया गया कि ये हमेशा उनके हाउसेस में मिलती थी, ये वाली डीटी जो उनके रहने वाले एरियाज होते थे, जबकि जो बरी करते थे डेड बॉडीज, वहां पर इस तरह के प्रमाण नहीं मिले हैं। मीन्स डीटीज के प्रमाण ये उनके हाउसेस में ही मिला है। तो इस तरह माना जाता है कि लिविंग और डेड के बीच में ये मीडिएट करती रहे होंगे, तो वर्शिप करते थे इनको एज ए मदर गॉडेस और डेटी।
The graves, murals, and figurines suggest that the people of Kettlehook has the religion rich in symbols. They have the religion rich in symbols. Large number of mud brick houses were found. Houses were built right up against each other. अब यहाँ पर हाउस का जो सिस्टम है यूनिक सिस्टम यहाँ पर पाया गया कि कोई डोर्स नहीं होते थे. देयर वर नो डोर्स इन द हाउसेस. देयर वर नो डोर्स इन द हाउसेस. व्हाई? बिकॉज ये एक के बाद एक अटैच होते थे. हाउसेस एक के बाद एक अटैच होते थे. कोई भी इनके बीच में गैपिंग नहीं है. और इनमें जो डोर मीन्स निकलने का एरिया होता था वो रूफ पे होता था. रूफ टॉप से ये एक होल बना देते थे अपने अपने घरों में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है. तो रूफ टॉप पे आपको होल मिलेगा. ऐसे सभी सभी घरों में रूफ टॉप पे होल मिलता है. मीन्स वो अपने घरों से निकलने के लिए अपनी छत पर एक होल बनाते थे और वहां से निकलते थे. तो उनकी जो छत होती थी वही स्ट्रीट का काम करती थी. ठीक है. तो ये एक यूनिक सिस्टम हमको कैटलॉग से मिलता है हाउसिंग का, जहां पर कोई स्ट्रीट्स नहीं है, डोर नहीं है हाउसेस में, और रूफ को ही एज ए वो स्ट्रीट यूज करते थे. निकलना होता था उसी के सहारे से. और इस तरह ये जो होल्स बना देते थे रूफ पे, वहां से एक लैडर निकालते थे नीचे की तरफ, रूम की तरफ, और जिससे वो अपने घरों में घुस जाते थे. और यहाँ से एयर का भी अच्छे से मीन्स एयर ट्रांसफर भी अच्छा हो सकता रहा होगा. जब वो कुकिंग करते रहोगे अपने रूम्स में तो यहाँ से हवा का जो है एक्सचेंज हो सकता था आसानी से. तो इस तरह होल्स थे जिससे कि वो निकलने का भी काम करते थे और एयर भी अंदर बाहर हो सकती थी इन जगहों से. नहीं तो सफोकेशन हो सकता था क्योंकि यहाँ पे तो कोई डोर और विंडो थी नहीं. तो इस तरह यहाँ पर हमको नो स्ट्रीट्स और फुटपाथ मिलते हैं. एंड रूफ्स मस्ट हैव एक्टेड एज ए स्ट्रीट्स. तो रूफ को ही स्ट्रीट्स के रूप में यूज करते रहे होंगे. कम्युनल ओवंस भी हमको होम के ऊपर ही मिले हैं. मीन्स कुछ एक प्रमाण में हमको मीन्स इकट्ठा होकर हो सकता है वो खाना बनाते रहे हों, और ये रूफ के ऊपर मिले हैं प्रमाण इस तरह के communal ovens के. that shows the group activities were performed in the elevated space well. तो सारे काम ज्यादातर वो शायद ऊपर ही करते रहे होंगे, सिर्फ सोने के लिए वो नीचे जाते रहे होंगे. एंड लाइक जेरिको टेराफिम प्लास्टर स्कल्स were also found here. तो ये जो फीमेल फिगराइन डीटीएस के अलावा यहाँ पर टेराफिम जो प्लास्टर स्कल्स, जैसा कि हमने जेरिको में बताया था, ओरिजिनल स्कल्स को वो मड से प्लास्टर कर देते थे. तो इस तरह की स्कल भी यहाँ पर मिलती है प्रमाण के रूप में. ओनली यूथ एंड तो उनमें जेंडर या उसके बेस पे कोई ऐसा वेरिएशन नहीं होता था, लेकिन यूथ एंड चिल्ड्रन को वो स्पेशल डेकोरेशन करते थे बीड से और ऑक्रेक से उसको कलर करते थे. एंड ये स्पेशल कंसर्न इसलिए होता था क्योंकि जो चिल्ड्रन की ज्यादा जरूरत पड़ती थी इकोनॉमी को संभालने के लिए, लेबर एक्सचेंज एंड इनहेरिटेड नीड्स. दैट्स व्हाई दे decorate their burial of the young and children. It's a map of Southwest Asia fertile crescent या नियर ईस्ट मिडल ईस्ट जो एरिया जहाँ पर हमने पाया कि पूरा जो नियोलिथिक कल्चर कैसे डेवलप हुआ वो ये एरिया है. यहाँ पर जो है तो यहाँ पर ये देखिए जारमू है, जारमू. And here is Jericho, Zarmo, Jericho. Here is Shanidar and Cattle Hook. Cattle Hook here. So these are the various sites of the Neolithic culture in the Southwest Asia Fertile Crescent. Okay. Then Neolithic Europe. तो अभी नियर ईस्ट में हम पढ़ रहे थे डिफरेंट साइट्स, फोर साइट्स हमने पढ़ी. अब आता है नियोलिथिक यूरोप. नियोलिथिक यूरोप में जो एविडेंसेस मिले हैं दैट वाज फ्रॉम बाल्कन रीजन. तो बाल्कन रीजन से मिलते हैं. और दूसरा होता है डेनुबियन कल्चर. तो फर्स्ट इज द बाल्कन कल्चर, बाल्कन रीजन. एंड यहाँ पे माना जाता है कि जो एनाटोलियन माइग्रेंट्स रहे होंगे मीन्स जो टर्की से, वही यहाँ पर बाल्कन में नियोलिथिक कल्चर को शुरुआत किए. मीन्स वही माइग्रेट करके यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की. तो इस तरह यहाँ पर भी नियोलिथिक कल्चर डेवलप हो गया यूरोप में. तो सबसे पहले बाल्कन में स्टार्ट हुआ अराउंड 7000 BC.
and it is identified as primary center of neolithization in the Europe. तो सबसे पहले बाल्कन में ही शुरुआत हुई because of the Anatolian migrants from Turkey. तो जो साउथ वेस्ट एशिया से ये माइग्रेट करके यहाँ पर कुछ आए लोग और उन्होंने यहाँ पे प्लांट एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री सिरेमिक एंड मोनोक्रोम पॉटरी यहाँ पर मिलती है मीन्स एक कलर की सिंगल कलर पॉटरी एंड प्री सिरेमिक मीन्स देयर इज नो एविडेंस ऑफ पॉटरी हियर occupation is active floodplains of the Thale on the southern tip of Balkans. तो विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री सिरेमिक एंड मोनोक्रोम पॉटरी ठीक है तो प्री सिरेमिक एंड मोनोक्रोम पॉटरी ऑक्यूपेशंस थेसाले रीजन में मिलते हैं जो कि बाल्कन की साउदर्न टिप पर है Argisa Megula is a village in Greek Thessaly where early Neolithic settlements in the form of compact villages were found. Here one-room houses were found which were made of baked mud plastered on poles and wicker. So this kind of Neolithic settlement, one-room settlement यहाँ पर मिला और compact village का यहाँ पर evidence मिलता है Argisa Megula in Balkan region. It is one of the site in Greek Thessaly region of Balkan and the time period is 7000 BC. Site is Argisa Megula Star Sigo in Belgrade जिसको कि जो कल्चर का नाम है कारानोवो कल्चर और एविडेंस मिलते हैं cereals like emmer wheat, it's a variety of wheat, and then barley, domesticated cattle, sheep, pig, ill-fired pottery, mud plastered baskets. यहाँ पे mud plastered baskets means उन्होंने शायद मड से बास्केट बनाने की शुरुआत की होगी वन रूम सेटलमेंट्स और यहाँ पर compact villages, female figurines. So these are the various evidences which we get from the Balkan region of Neolithic Europe. Some plant species like wheat, barley, and domesticated animal species, cattle, sheep, pig, and pottery, ill-fired pottery, ill-fired and handmade pottery यहाँ पर मिलती है, and mud plastered baskets मिलते हैं, one-room settlements मिलते हैं. तो एंड फीमेल फिगराइन ये एक फीमेल फिगराइन है तो इस तरह की फीमेल फिगराइन के भी हमको प्रमाण मिलते हैं फ्रॉम बाल्कन रीजन. देन कम्स द Danubian culture. Danubian culture में the term Danubian culture was first coined by V. Gordon Child. The term Danubian culture was first coined by V. Gordon Child and these were the first agrarian society in the Central and Eastern Europe. सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में सबसे पहले एग्रीरियन सोसाइटी मींस एग्रीकल्चर सोसाइटी वो थी Danubian society and its distribution is Danubian coast in Loic zones of Germany, Czechoslovakia, Austria, Bohemia and Hungary. Time period is ये younger है than Balkans because Balkan में पहले माइग्रेट करके लोग आए और फिर ये धीरे धीरे कल्चर डेवलप हुए इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप जिसमें कि Danubian कल्चर भी है. 5500 BC to 3500 BC इस दौरान यहाँ पर हमको न्यूलिथिक के प्रमाण मिलते हैं and the sites are Baileni in Bohemia, Kol Linderthal and Neckar and Talheim in Germany and Schletz in Austria. These are the various sites of Danubian culture. Evidences are linear pottery culture. This is one of the unique evidence of this Danubian culture, LBK pottery. LBK pottery means linear band ceramic pottery. तो ये linear pottery culture या linear band ceramic LBK pottery यहीं पर मिलती है हमको Danubian culture of Europe से. यहाँ पर कुछ linear यहाँ पर वर्क किया गया है lines के द्वारा आर्ट वर्क किया गया पॉटरी पर इसीलिए इसको लीनियर बैंड ceramic पॉटरी कहते हैं. स्ट्रोक्ड पॉटरी भी मिलती है कुछ स्ट्रोक्स बनाए गए पॉटरी पर और रोजन कल्चर्स के प्रमाण मिलते हैं. तो सबसे पहला प्रमाण है लीनियर बैंड पॉटरी एंड देन लेटर नियोलिथिक के समय में स्ट्रोक पॉटरी एंड रोजन कल्चर्स मिलते हैं. लेट नियोलिथिक द Danubian विच अर्ली नियोलिथिक में लीनियर पॉटरी कल्चर के प्रमाण मिलते हैं. पेंटेड पॉटरी एशियाटिक इन्फ्लुएंस माना जाता है मीन्स माना जाता है कि एशिया का इन्फ्लुएंस था और उसी की वजह से यहाँ पे कुछ पेंटेड पॉटरी के प्रमाण मिले. शूलास्ट ईस्ट सेल्ट जिसमें कि थिन स्टोन एजेस मिलते हैं और ह्यूमन सेटलमेंट्स में लॉन्ग हाउसेस मिलते हैं. So these are the various evidences which we get from Danubian culture.
कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड कल्टिवेटेड fertile soil from Balkans to Low Countries and Paris Basin. They made the LBK pottery, that is the linear band ceramic pottery, and the culture is linear pottery culture of Danube. It spreads westward along the valley of River Danube and interacted with the culture of Atlantic Europe, where there is the Paris Basin. एंड दे मेड राउंड बेस्ड वेसल्स, राउंड बेस्ड वेसल्स वो बनाना शुरू कर दिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, और विद लाइंस एंड स्पाइरल्स इंसाइज्ड ऑन द क्ले, तो लाइंस एंड स्पाइरल्स वो बनाते थे। हैंडमेड पॉटरी होती थी और इल फायर्ड पॉटरी वाज मेड, मींस ये अच्छे से वो पका नहीं रहता था, मींस फायर पे इल फायर्ड पॉटरी होती थी जो कि ब्रेक भी हो सकती थी। दे डोमेस्टिकेटेड द काउस, पिग्स, तो यहाँ पर हमको काउ, पिग्स, डॉग्स, शीप्स एंड गोट्स के प्रमाण मिलते हैं। दे कल्टिवेटेड द बार्ली एंड कॉर्न, एमर, व्हीट एंड फ्लैक्स। फ्लैक्स वाज यूज्ड बाय टू मेक गारमेंट्स हियर, तो यहाँ पर गारमेंट्स बनाते थे वो फ्लैक्स फाइबर्स की मदद से। और they practice the shifting cultivation. We also get the evidences of shifting cultivation in Danube culture. Shifting cultivation आप जानते होंगे कि एक जगह छोड़कर फिर दूसरी जगह वो फॉरेस्ट लैंड को मींस एक एरिया लैंड का, फॉरेस्ट का एक पैच ऑफ लैंड को वो क्लियर करते थे विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, जो सिकल्स और इस तरह के टूल्स से, और फिर वो वहां पर उस फॉरेस्ट को जो काटे रहते थे वहां पर बिछा देते थे उस पूरी लैंड पर, फिर उसे जलाते थे। और एश फायर कल्टीवेशन भी इसलिए इसको कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हिंदी में इसको घुमंतु खेती कहते हैं, जो अभी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कुछ एरियाज में अभी भी मिल जाएगी, ट्राइबल एरियाज में। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फिर वो उस जो पैच ऑफ लैंड में फॉरेस्ट को जला देते थे और फिर वहां पर वो कुछ सीड्स, मोटे अनाज के सीड जैसे कि बोरले और एंड कॉर्न इस तरह के, वो छिड़क देते थे और रेन के आने का इंतजार करते थे। रेन आएगी तो फिर वो सीड कल्टीवेट होंगे अपने आप। तो इस तरह एक ड्राई फार्मिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो सकता है, और जहां पर वो रेन के आने का इंतजार करते थे, खुद से वो प्लाव और इस तरह कुछ नहीं करते थे, सिर्फ फॉरेस्ट के एशेस पर वो सीड्स को डाल देते थे और उसके बाद जब रेन आती थी तो वो क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाता था। तो इस तरह का कुछ हमें यहाँ डनूबे कल्चर से भी प्रमाण मिलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। एंड दे लिव्ड इन लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस विद नंबर ऑफ रूम्स, बहुत सारे रूम्स होते थे। और फीमेल फिगराइंस यहाँ पर भी मिली हैं, सीटेड फिगराइन जैसे कि फीमेल फिगराइन, कुछ यहाँ पर स्टोन्स पर, सैंड स्टोन्स पर कुछ माउथ मीन्स वो फेशियल एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि मोस्टली सैड स्पेसेस यहाँ पर है। और कुछ फिशेस से मीन्स सिमिलर कुछ यहाँ पर हमको फिश स्केल लाइक यहाँ पर कुछ हमको प्रमाण मिल रहे हैं। With facial designs, around 100 sandstone boulders were found. तो 100 sandstone boulders पाए गए, फीमेल फिगराइंस पाई गई हैं सीटेड। और इस तरह माना जाता है कि ये कुछ रिलीजियस या मैजिकल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते रहे होंगे। शूल और सेल्ट जो इसमें की एक्सरसाइजेस, ये भी फेल ट्रीज और जैसा कि कुछ वेपन्स के लिए भी यूज किए जाते होंगे या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किए जाते होंगे। कुछ स्कल्स पाई गई हैं, लालहेम, नेकर इन जर्मनी एंड स्कल यहाँ पर। तो एविडेंस ऑफ शेल इंपोर्ट फ्रॉम मेडिटेरेनियन आल्सो फाउंड, मींस वो ट्रेड करते थे। एंड इंक्रीज पॉपुलेशन रिजल्टेड इन फिशन, दे माइग्रेटेड टुवर्ड द स्विस लेक्स, ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो लोग इधर उधर माइग्रेट करने लगे, जिसमें कि स्विस लेक की तरफ माइग्रेट किए। और सीरीज ऑफ फार्मिंग विलेजेस फाउंड, 2 रूम स्ट्रक्चर विद द लेडर्स मे बी फॉर फिशिंग पर्पस, और बोट्स के भी प्रमाण मिलते हैं। और फिर लेटर एजेस में यहाँ पे मेगालिथिक कल्चर स्टार्ट हो गया अराउंड 4000 BC विद लार्ज टॉम्स ऑफ स्टोन। तो लार्ज स्टोन टॉम्स यहाँ पर मिलने लग गए, जिसमें कि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, आयरलैंड में हमको मेगालिथिक स्टोन टॉम्स के प्रमाण मिलते हैं। मेगा मीन्स लार्ज एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो जब लार्ज स्टोन्स इरेट करने लग गए वो बरियल साइट्स पे तो उसको मेगालिथिक कहते हैं। एंड मेगालिथिक पे कल्चर की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पर कुछ कुछ नियोलिथिक में प्रमाण इसके मिलते हैं, लेकिन जब लार्ज स्केल में हमको मेगालिथ के प्रमाण मिलते हैं एट द ये मेगालिथिक कल्चर इन आयरन एज में सबसे ज्यादा मेगालिथ मिलते हैं। पर नियोलिथिक में भी यहाँ पे डनूबियन में भी हमको मेगालिथिक के कल्चर
के प्रमाण मिलते हैं अराउंड 4000 BC. Here we have the map of Balkan region. ये Balkan region है, इसमें ये सारी 11 countries आती हैं on the south eastern border of Europe, जिसमें कि ये रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, मोल्डोवा. तो these are the various countries in Balkan region, और यहीं पर Balkan region की शुरुआत हुई. और एनाटोलियंस जो थे वो माइग्रेट करके यहाँ पर आए नियर ईस्ट से, और उन्होंने यहाँ पर नियोलिथिक कल्चर की शुरुआत की. देन डनूबियन कल्चर है, ये पूरा जो येलो से बना हुआ है, यहीं पे डनूबियन कल्चर पाया गया. और ये जो भी यहाँ पे स्ट्रोक पॉटरी, रोजन कल्चर, लिंगले, इस तरह डनूबियन कल्चर यहाँ पर येलो जो कलर्ड है वही एरिया में डनूबियन कल्चर पाया गया. So this was all about Neolithic culture, and meet you in next class. Thank you, Pranjal. Thank you, Pranjal. Thank you, Shiv. Meet you in next class.